بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط۔ سری نگر میں بھارتی پولیس نے 3 نوجوان گرفتار کر لیے۔ دہلی ہائی کورٹ نے تہاڑ جیل انتظامیہ کو محمد یاسین ملک کے علاج و معالجے کا حکم دے دیا۔ تنازع کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، میروائز عمر فاروق۔ مودی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، عمر عبداللہ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر اور پاکستان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، رانا قاسم نون۔ اقوام متحدہ میں علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی پیش کی گئی قراردادیں منظور۔ کشمیری عوام نے ناجائز بھارتی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا، راجہ سجاد خان۔ بنگلورو مسلم مخالف اشتعال انگیز بیان پر بی جے پی لیڈر کرشنا نائک کی گرفتاری کا مطالبہ۔ شوری زدہ منی پور نکسل باغیوں نے 6 مکانات کو آگ لگا دی، لوگوں نے جنگل میں چھپ کر جان بچائی۔ غزہ میں صہیونی افواج کی فلسطینیوں کی نسل کشی پر اقوام متحدہ کے انکشافات۔ غزہ معصوم بچے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے فوڈ کینز کو جوتوں کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایمسٹرڈیم صہیونی بلوایوں کا فٹ بال میچ میں ہنگامہ، فلسطینی پرچم جلا دیے۔ فلسطینی صدر کا ٹرمپ کو فون، کامیابی پر مبارکباد دی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نریندر مودی کے زیر قیادت بی جے پی کی ہندوتوا بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کو ان کی زمینوں اور جائیداد و املاک سے محروم کرنے کے اپنے تازہ ترین اقدام کے طور پر ضلع کپواڑہ میں مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق ضبط کی گئی جائیدادوں میں 9 کنال اور 11 مرلہ اراضی شامل ہیں جو ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ علاقے میں واقع ہیں۔ زمین کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ جن افراد کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں ان کی شناخت عبدالمجید ملا، عبدالرشید میر، ارشد احمد اور سجاد احمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیری عوام کی جائیداد و املاک کی ضبطی کی مذموم مہم تیز کر دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد کشمیری عوام کو بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے پر سزا دینا اور انہیں اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں بھارتی پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت اسامہ یاسین شیخ، عمر فیاض شیخ اور عفنان احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ گرفتار نوجوان سری نگر کے اخراج پورہ علاقے کے رہائشی ہیں۔ بھارتی پولیس نے نوجوانوں کی گرفتاری کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پر ایک مجاہد تنظیم کے ساتھ وابستہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے جو ان کے لواحقین نے مسترد کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے تہاڑ جیل انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو ضروری علاج و معالجہ فراہم کریں۔ محمد یاسین ملک طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف 1 نومبر سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس انوپ کمار منڈیتا نے محمد یاسین ملک کی فوری طبی امداد کی درخواست کے جواب میں بھارتی حکومت، دہلی انتظامیہ اور تہاڑ جیل حکام کو نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے محمد یاسین ملک کی صحت کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت 11 نومبر کو مقرر کی ہے۔ محمد یاسین ملک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کا موکل کی بھوک ہڑتال گزشتہ 1 ہفتے سے جاری ہے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ وکیل نے عدالت کو اپنے موکل کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کو صحت کی شدید خرابی کے باوجود مناسب طبی سہولیات کی فراہمی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے مئی 2022 میں محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے ان کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرانے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر اب تک حل نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری عوام شدید مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے قابل قبول اور منصفانہ حل کے لیے نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کا آغاز کریں۔ میروائز عمر فاروق نے گزشتہ روز سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے جسے حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن و استحکام ہرگز ممکن نہیں۔ انہوں نے معروف کشمیری رہنما اور آزاد جموں اور کشمیر کے سابق صدر میروائز مولانا محمد یوسف شاہ کے فرزند میروائز مولوی محمد احمد شاہ کو، جن کا گزشتہ دنوں اسلام آباد پاکستان میں انتقال ہوا، بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ کردار کے حامل انسان
एक मुमताज़ और बाकमाल मजहबी रहनुमा और दानिश्वर थे। उन्होंने कहा कि मरहूम की बेलोस और अनमोल खदमात ने उन्हें पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मुनफरिद शनाख्त अता की थी। मीर वाइज उमर फारूक ने अफसोस का इजहार किया कि काबिज भारतीय इंतजामिया ने उन्हें मौलवी मोहम्मद अहमद शाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा नहीं करने दी। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें बीजेपी की भारतीय हुकूमत से ज़्यादा तवक्कात नहीं है। ये हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने असम्बली इजलास के आखिरी रोज़ आइवार में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से असम्बली की पास करदा करारदाद ने कश्मीरी अवाम को अपनी आवाज़ वापस दी है। इस करारदाद ने अवाम को उम्मीद और इजहार का मौका दिया है। उन्होंने नामुंतखब असम्बली के पहले सेशन को तारीखी करार देते हुए कहा कि असम्बली इजलास एजेंडे और कामयाबियों के लिहाज से तारीखी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम लोगों के लिए मसावी है। हमारी हुकूमत जम्मू और कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि जब वो 2014 में असम्बली के रुकन थे तो जम्मू और कश्मीर का अपना एजेंडा, आइन और मुनफरिद शनाख्त हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। उमर अब्दुल्ला ने 4 अगस्त 2019 में अपने दुख भरे तजुर्बे को भी याद किया जब मोदी हुकूमत ने उन्हें आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी और जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किए जाने से कबल हिरासत में लेकर हरी नवास इंट्रोगेशन सेंटर में नजरबंद रखा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो दिन भी गुजर गए, जैसा कि उर्दू में कहते हैं, रात गई बात गई। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से भी उम्मीद का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में हंगामा आरई के हवाले से बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी वाले अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहे, हंगामा बपा किया और असम्बली से चले गए। बीजेपी ने इजलास के आखिरी दिन का बाइकाट किया। कबल अज़ीं बीजेपी मेंबरान ने असम्बली की तरफ से खुसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से पास करदा करारदाद के खिलाफ आइवार में शदीद हंगामा आरई की। गुज़श्ता रोज़ असम्बली के आखिरी दिन 12 बीजेपी मेंबरान को हंगामा आरई पर असम्बली से निकाल दिया गया, जबकि एक रोज़ कबल 3 अरकान को निकाल दिया गया था। ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नामुंतखब असम्बली का पहला इजलास था। 5 रोज़ा इजलास 4 नवंबर को शुरू हुआ था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के शहरग और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का दिल है। कोई भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान को जुदा नहीं कर सकता। राना कासिम नून ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यादगारी शोहदा पर ज़राए अबलाग की नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है और इस मज़मूम मकसद के लिए उसने लाखों भारतीय हिंदुओं को मकबूजा इलाके के डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरी हुर्रियत क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों में बंद कर रखा है। हम मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया इंद्राबी, शब्बीर अहमद शाह और दीगर नज़रबंद रहनुमाओं के अज़्म हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। राना कासिम खान नून ने कहा कि जिस तरह दीवारें बदलन गिर गई, उसी तरह खूनी कंट्रोल लाइन भी एक दिन खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर पाकिस्तान का कौमी काज है। पाकिस्तान गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खात्मे तक कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इस मौके पर कश्मीर कमेटी के अरकान फतेहुल्लाह खान और सईद जावेद शाह जिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी ने तख़फ़ीफ़ असलहा से मुतालिक पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई 4 करारदादों की मंजूरी दी है, जिनका मकसद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को फ़रोग़ देना है। इन करारदादों से इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के अज़्म की अक्कासी होती है। ये करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तख़फ़ीफ़ असलहा और बैनुल-अक़वामी सलामती से मुतालिक फर्स्ट कमेटी ने मंजूर की हैं, जिनमें से 3 करारदादों को रुकन ममालिक की जानिब से इसके बावजूद ज़बरदस्त हिमायत हासिल हुई कि आलमी सतह पर जौहरी असलहा के अदम फैलाव और इसमें तख़फ़ीफ़ के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। तवक्को है कि इन करारदादों के मुसवदों को तौसीक़ के लिए आइंदा माह जनरल असम्बली में पेश किया जाएगा। करारदादें इलाकाई सतह पर तख़फ़ीफ़ असलहा, इलाकाई और ज़ैली इलाकाई सतहों पर रिवायती हथियारों के कंट्रोल के साथ साथ इलाकाई और ज़ैली इलाकाई तनाज़ुर में इत्तेमाद साझी के इक़दामात से मुतालिक हैं। इलाकाई तख़फ़ीफ़ असलहा और इलाकाई और ज़ैली इलाकाई तनाज़ुर में इत्तेमाद साझी के इक़दामात के उन्वान से करारदादें इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर की गईं। इलाकाई और ज़ैली इलाकाई सतह पर रिवायती हथियारों का कंट्रोल के उन्वान से करारदाद के मतन के हक़ में 179 वोट और मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट पड़ा, जो भारत का था। इसके अलावा इसराइल ने करारदादों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
वाज़ेह रहे कि भारत खत्ते में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए हथियारों की दौड़ जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान अपनी कम से कम दिफाई सलाहियत बरकरार रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। डायरेक्टर कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर राजा मोहम्मद सज्जाद खान ने कहा है कि मोदी हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 में गैर कानूनी और एक तरफा इकदाम के बावजूद आलमी बरादरी जम्मू और कश्मीर को एक मुतनाज़ इलाका मानती है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की भारतीय हुकूमत के मज़मूम इक़दाम का बुनियादी मकसद मकबूज़ इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है। राजा सज्जाद खान ने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तानी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आए हुए सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान को मसले कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में ब्रीफिंग देते हुए किया है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। कश्मीरी अवाम ने कभी भी नाजायज़ भारतीय कब्जे को तस्लीम नहीं किया और न आइंदा करेंगे। राजा सज्जाद खान ने कहा कि भारत ने अपनी गासिबाना कब्जे को बरकरार रखने के लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 10 लाख के लगभग फौजी एहलकार तैनात कर रखे हैं और उसने काली कानून, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत अपने सफाक फौजों को बेलगाम इख्तियार दे रखे हैं। काबिज भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि भारत बे इंतहा जबरो सितम के बावजूद कश्मीरी अवाम की आज़ादी की आवाज़ दबाने में नाकाम रहा है। डॉक्टर राजा सज्जाद खान ने कहा कि कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज़ाद कश्मीर का पहला थिंक टैंक है, जिसका मकसद आज़ाद कश्मीर में रिसर्च कल्चर को फ़रोग देना है। उन्होंने कहा कि इदारा मसले कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के तहकीकाती मज़ामीन शाया करता है। यूनिवर्सिटी तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी मुनाक़िद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का एक खत्ता 1947 में इंतहाई पसमानदा था, लेकिन आज हर शोबे में तरक्की की जानिब गामजन है। भारत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयान पर BJP लीडर कृष्णा नाइक की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बेंगलुरु जिला के हल्का विजयनगर के हव्याना खुदा गली से BJP के MLA कृष्णा नाइक ने बेटकल में एक रैली के दौरान मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज तकरीर में कहा था कि भारत में मुसलमानों की हैसियत सिर्फ किरायादारों की है और इनका असल मकाम पाकिस्तान में है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि भारत में मुसलमानों की ज़ेरी मिल्कियत ज़मीनें उन्हें 1947 में दी गई थीं और ये कि मुसलमानों की तरफ से मिल्कियत का दावा करने की कोई भी कोशिश उनके ज़बरदस्ती पाकिस्तान रवानगी का बाइस बनेगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर तौफीक ने पुलिस को खबरदार किया है कि अगर कृष्णा नाइक को फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो उसके खिलाफ एहतजाज के अलावा पुलिस स्टेशन का घेराव भी करेंगे। BJP लीडर के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। तंजीम ने पुलिस हुकाम से सवाल किया कि अभी तक कृष्णा नाइक की नफरत अंगेज तकरीर का नोटिस क्यों नहीं लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि BJP खुलेआम भारत भर में अक़लियतों के खिलाफ नफरत का जहर फैला रही है। शोरी ज़दा भारतीय रियासत मणिपुर में नक्सलवादियों ने जिला जरीबाब में कबायलियों के गांवों पर हमला करके कम से कम 6 मकानात को आग लगा दी है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया है कि नक्सलवादियों ने गुज़श्ता शाम जायरवन खुमार गांव में घरों को आग लगा दी। गांव वालों ने नक्सलवादियों की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही अपने घर बार छोड़कर करीबी जंगल में पनाह लेकर अपनी जानें बचाई। ताहम बागियों ने गाँव के कम से कम 6 मकानों को नजरआतश किया। वाज़ेह रहे कि मणिपुर में गुज़श्ता बरस मई से पुरतशद्दुद वाक़ियात जारी हैं, जिन्हें पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखुसूस भारतीय फौज रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इन पुरतशद्दुद वाक़ियात के दौरान कम से कम 250 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों बेघर हो चुके हैं। गजा पट्टी में सहयूनी अफवाज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंकशाफात सामने आए हैं। न्यूयॉर्क से अरब मीडिया के मुताबिक नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक गजा के शुहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के पहले 6 माह में इसराइली अफवाज के हमलों में 34,500 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पहले 6 माह में शहीद फ़लस्तीनियों में 8,119 बच्चे और ख़वातीन थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात ने गजा के शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। इमदादी सामान रोकना, शहर के बुनियादी ढांचे को तबाह करना और शहरियों को नकली मकानी पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इक़दामात के अबाइस गजा के शहरी फाका कशी और खतरनाक बीमारियों से दो चार हैं। सहयूनी अफवाज के बहासरे और बमबारी के बाइस गजा में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जिन्हें खाने पीने और तिब्बी सहूलियात के फुकदान के साथ साथ
ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गजा में बेघर बच्ची को सर्दी से अपने पाँव बचाने के लिए खाने के डिब्बों को जूतों के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फलस्तीनी सोशल मीडिया अकाउंट अल कुदस पर एक सारिफ ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्ची ने चप्पल ना होने के बायस स्टील के डिब्बों को जूते के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बच्ची ने डिब्बों के अंदर सुराख करके अपने पाँव में पहने हुए हैं, जबकि डोरी के सिरों से उसे हाथों से पकड़ा हुआ है। वीडियो में ये बच्ची गली में घूमती नजर आ रही है। वाज़ेह रही कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में सूरत-ए-हाल बदस्तूर संगीन है, जहां इसराइली हमलों में 43,508 फलस्तीनी शहीद और 1,02,684 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हाईलैंड के दारुल-हुकूमत एम्स्टरडैम में मकामी और इसराइली फुटबॉल क्लब के दरमियान यूरोपीय लीग के मैच के मौके पर सहयूनी बलवायों की हंगामा आराई, फलस्तीनी परचम जलाई गई। मकामी काउंसिल के रुकन के मुताबिक इसराइली क्लब के हामियों ने डिच शहरियों के घरों पर हमले किए। शहरियों ने यकजा होकर जवाब दिया। इसराइली क्लब की शिकस्त के बाद सहयूनी बलवाई आपे से बाहर हो गए। डिच पुलिस का कहना है कि उन्होंने 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सहयूनी शायकीन को खुसूसी परवाजों से उनके मुल्क मुंतकिल कर दिया गया। एम्स्टरडैम में फलस्तीन के हक में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। अरब मीडिया के मुताबिक महमूद अब्बास ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान गजा में जंग बंदी के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार किया। खबरसां इदारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने महमूद अब्बास को यकीन दिलाया कि वो गजा पर इसराइल की जंग को खत्म करने के लिए काम करेंगे।